الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت صدق اللہ ورسولہ النبی الکریم۔ حاضرین محترم، عزیز دوستو، ترمذی شریف کی ایک حدیث ہے۔ حضرت اوس بن اوس رضی اللہ عنہ اس حدیث کو نقل فرماتے ہیں۔ حضرت اوس بن اوس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص جمعے کے دن اچھی طریقے سے غسل کرتا ہے اور غسل کرنے کے بعد خطبہ شروع ہونے سے پہلے اپنے گھر سے چلتا ہے مسجد کی طرف اور صحیح ڈھنگ سے پیار اور محبت سے آرام سے مسجد کے اندر تشریف لاتا ہے اور آ کر کے سکون اور اطمینان کے ساتھ میں بیٹھتا ہے اور خطیب کا خطبہ بڑے غور اور فکر کے ساتھ میں سنتا ہے، اور اس دوران جب وہ اپنے گھر سے چلا ہے غسل کرنے کے بعد اور اب تک جو کہ اس نے خطبہ کو سنا ہے، اس دوران اس نے اپنے کسی بھی عمل سے کسی بھائی کو بھی تکلیف نہ پہنچائی ہو اور آ کر کے کسی عمل سے کسی بھی وجہ سے اس نے کسی دوسرے کو تکلیف نہ پہنچائی ہو اور آ کر کے آرام سے بیٹھا ہو اور خطبہ پاک اور خطبہ سنا ہو، تو اس کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص یہ کام کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو 1000 روزوں کے برابر اور 1000 رات کے قیام یعنی تہجد کے برابر اللہ تبارک و تعالی اس کو ثواب عطا فرماتا ہے۔ دعا کیجئے کہ اللہ پاک ہم سب کو بھی اس جمعے کی قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ حاضرین، آج چونکہ جمعے کا دن ہے اور آپ اور ہم حضرات اور آپ اور ہم لوگ سب جانتے ہیں کہ اسی جمعے کے دن کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سارے خصوصیات اللہ کے رسول نے بیان فرمائی، اور اسی جمعے کے متعلق لکھا گیا کہ اسی دن کے اندر قیامت بھی قائم ہونی ہے۔ وہ جمعے کا دن بھی ایسا ہی جمعے کا دن ہوگا جیسا کہ آج ہے۔ جس طریقے سے آج سویرے اٹھنے سے پہلے یا ہم اٹھے، ہمارے دل کے اندر یہ خیالات تھے کہ ہم انشاءاللہ صبح اٹھیں گے یا صبح ہو رہی ہے، جس طریقے سے ہمارے خیالات تھے کہ آج مجھ کو یہ کام کرنا ہے، آج مجھ کو وہاں جانا ہے، آج مجھے یہ کام درپیش ہے، آج میں وہاں جاؤں گا۔ ٹھیک اسی طریقے پر وہ جو کل قیامت کا دن جمعے کا دن ہوگا، اسی دن وہ بھی اسی طریقے سے جمعے کا دن ہوگا، اور اس دن جو دن کو پانے والے لوگ ہیں ان کے دلوں کے اندر بھی یہ تمام خیالات ہوں گے۔ چنانچہ مزدور لوگ اس دن کو جب صبح ہو رہی ہوگی، رات جا چکی ہوگی، رات سوچ رہی ہوگی کہ میں پھر سے لوٹ کر کے اگلے دن آؤں گی، اور دن نکل رہا ہوگا، وہ سوچ رہا ہوگا کہ میں جس طریقے سے ہر دن آتا تھا جاتا تھا کل بھی اسی طریقے سے آؤں گا۔ اور اس دن جس طریقے سے پرندے صبح سویرے اٹھتے ہیں اور اپنی غذا تلاش کرنے کے لیے اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں، اس دن بھی گھونسلوں سے پرندے باہر نکلیں گے اپنی غذا کے تلاش میں۔ مزدور دوڑ رہا ہوگا اپنی مزدوری کی طرف، کسان جا رہا ہوگا اپنے جنگل کی طرف کہ مجھ کو جنگلات کا دیکھنا ہے کہ کیا ہے، کیا حال ہے۔ جنگل کی طرف جا رہا ہوگا، کوئی کسرے لے کر کے جا رہا ہوگا، کوئی آفس کی تیاری کر رہا ہوگا، کوئی عورت کھانا بنا رہی ہوگی، کوئی روٹیوں پر مکھن لگانے کے لیے بالکل تیار ہوگی، کوئی کسلا اٹھا کر کے یوں نیچے مارنے والا ہوگا۔ یہ تمام چیزیں درکار اور درپیش ہوں گی۔ ٹھیک ایک دم سے ایک آواز آئے گی، فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ
इदा अस्समाउ फतरत व इदल कवाकिबु इंतसरत व इदल बिहारु फुज्जिरत व इदल कुबूर बुहसिरत। आवाज आएगी अल-हाक़्क़तु मल-हाक़्क़ा वमा अदराका मल-हाक़्क़ा। जब एक भयानक आवाज आएगी तो जो किसान के हाथ में कसला होगा, फावला होगा, वो दूर जाकर के पड़ेगा और किसान कहीं और जाकर के पड़ेगा। जो औरत रोटी बना रही होगी उसके हाथ से रोटी छूट करके अलग गिरेगी और वो पीछे अलग जाकर के गिरेगी। मजदूर जो मजदूरी के लिए जा रहा होगा उसको पता नहीं मैं कहां हूं, फौरन वहीं जाकर के गश खा करके गिरेगा। परिंदे जो हवा में परवाज कर रहे हैं वो उड़ने के बजाय जमीन पर आकर के धप धप गिरेंगे। आज बादशाहत खत्म, बादशाहत माजी का अफसाना बनकर के रह जाएगी। आज तमाम लोग मरे, तमाम दुनिया का तमाम दुनिया पर जो भी चीज पाई है सब खत्म। आज शैतान की बारी आ गई, शैतान आगे आगे दौड़ रहा है, मलकुल मौत इसके पीछे पीछे दौड़ रहा है। आपने देखा होगा कि हम और तुम पानी के अंदर गोता लगाते हैं, लेकिन उस दिन शैतान पानी में गोता नहीं लगाएगा। उस दिन शैतान अपनी जान बचाने के लिए और छुटकारा पाने के लिए जमीन के अंदर गोता लगाएगा और इस किनारे पर से गोता लगाएगा और जमीन के दूसरे किनारे पर फिर जाकर के वो निकलेगा। जैसे ही वहां पर के जाकर के निकलेगा मलकुल मौत को अपने सामने पाएगा, फिर वहां से गोता लगाएगा, फिर तीसरे कोने में जाकर के निकलेगा, फिर चौथे कोने में जाकर के निकलेगा। वो कहेगा कि तुम मुझको कहां लेकर के जा रहे हो? तो मलकुल मौत कहेगा कि जहां तूने सारे दुनिया के इंसानों को भेजा आज तेरा भी वहीं जाने का नंबर आ गया। चुनाचे दुनिया खत्म, आज शैतान मर गया, फिर पहले वाले आसमान का नंबर आया, पहला आसमान टूट फूट, फिर दूसरे आसमान का नंबर आ गया वो खत्म, तीसरे आसमान का नंबर वो खत्म, कुल मिलाकर सारे सातों के सातों आसमानों का आज नंबर आ गया, सब फूट गए और सब खत्म हो गया। तो अल्लाह तबारक व तआला हजरत इस्राइल जो कि मलकुल मौत है, मौत का फरिश्ता, उनसे पूछेगा कि अब कौन बाकी है? तो मलकुल मौत कहेगा, मौत का फरिश्ता कहेगा कि अल्लाह हम चार फरिश्ते जो मुकर्रब फरिश्ते हैं, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, इसराफील अलैहिस्सलाम, मीकाईल अलैहिस्सलाम, इस्राइल अलैहिस्सलाम, ये चार मुकर्रब फरिश्ते हैं और चार वो फरिश्ते जो तेरे अर्श को संभाले हुए। तो अल्लाह तबारक व तआला कहेगा फलियमुत जिब्राइल और मीकाईल, यानी कि जिब्राइल और मीकाईल भी मर जाएं। तो एकदम अर्श के फरिश्ते पुकार उठेंगे और कहेंगे कि अल्लाह ये तो तेरे बड़े फरिश्ते हैं, इनको क्यों मौत दे रहा है? तो अल्लाह तबारक व तआला कहेगा उसकुत फकद कतबतुल मौतु अला मन काना तहत अर्शी, आप खामोश हो जाइए, जो भी कुछ मेरे अर्श के नीचे है वो सब कुछ फना और खत्म होने वाला है। चुनाचे जिब्राइल और मीकाईल को भी मार दिया जाएगा। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला पूछेगा कि अब कौन बाकी है? तो अल्लाह तबारक व तआला कहेगा अल्लाह इसराफील और मैं और जो तेरे अर्श को संभाले हुए हैं चार फरिश्ते बाकी हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला कहे अर्श के चारों फरिश्ते भी मर जाएं। चुनाचे अर्श के चारों फरिश्ते भी मर जाएंगे और अल्लाह तबारक व तआला का अर्श बजाते खुद अपने आप ही हवा में टिक जाएगा। फिर अल्लाह तबारक व तआला कहेगा कि अब कौन बाकी है? तो मलकुल मौत कहेगा कि अब तो सिर्फ मैं और इसराफील बाकी हैं। अल्लाह तबारक व तआला कहेगा इसराफील को भी मार दो, इसराफील भी मर जाए। चुनाचे इसराफील को भी मार दिया जाएगा और उनके हाथ में चूंकि सूर होगा जो कि सूर फूंकते हैं तो उनके हाथ से सूर निकलेगा और अल्लाह तबारक व तआला के अर्श के नीचे जाकर के वो चिपक जाएगा बल्ब की तरह। आज जिसने तमाम लोगों को अल्लाह तबारक व तआला से तमाम दुनिया को मारा और मौत दी, आज उसका भी नंबर आ गया। टांगें लड़खड़ा रही हैं, कांप रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला पूछेगा मलकुल मौत से अब कौन बाकी है? तो मलकुल मौत कहेगा कि अल्लाह तो सिर्फ मैं बाकी हूं। तो अल्लाह तबारक व तआला कहेगा मुत फइन्नका खल्कुम मिन खल्की, तू भी मर जा, तू भी तो एक मेरी मखलूक है। आज तमाम लोगों की मौत आनी है, आज मेरे अर्श के नीचे कोई बाकी रहने वाला नहीं है। चुनाचे जब मलकुल मौत के मरने का नंबर आएगा तो उनकी एक ऐसी चीख निकलेगी, उनसे एक ऐसी चीख निकलेगी कि पूरी जो है कायनात, ये सब जमीन और आसमान, ये सब रेजा रेजा हो जाएगा, सब कुछ रेजा रेजा हो जाएगा। जब पूरी दुनिया फना हो गई तो अल्लाह तबारक व तआला कहेगा मन कानली शरीकन फलियाती, मन कानली शरीकन फलियाती, कोई अगर मेरा शरीक है तो मेरे सामने आ जाए।
चुनाचे अल्लाह तबारक व तआला इस जुमले को 3 मरतबा कहेगा, मन कान अली शरीकन फलियाती, कोई मेरा शरीक हो तो सामने आए, कोई होगा तो आएगा भी। तो अल्लाह तबारक व तआला कहेगा, अनल, पूरी दुनिया को, इस कायनात को अपनी एक मुट्ठी में लेकर के एक झटका मारेगा, कहेगा कि अनल मलिक, मैं ही तो बादशाह हूं। फिर एक दूसरा वो झटका देगा और कहेगा, अनल कुद्दूस सलाम, मेरे ही लिए तमाम सलामती है, मेरे लिए पाकीज़गी है। फिर अल्लाह तबारक व तआला इसको मुट्ठी में लेकर फिर तीसरा झटका देगा और कहेगा, अनल मुहैमिन अल अजीज अल जब्बार अल मुतकब्बिर। ये तमाम के तमाम सिफतें सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला के लिए हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला कहेगा, इनल मुलूक, कहाँ है बादशाह जो छोटी छोटी सी हुक्मरानी करते थे दुनिया के अंदर और अपने आप को बड़ा बादशाह कहते थे, आओ मेरे सामने आओ। फिर अल्लाह तबारक व तआला कहेगा, इनल जब्बारून, जालिम लोग कहाँ हैं जो कमजोरों पर तरस न खाते, कमजोरों पर जुल्म करते, आओ मेरे सामने आओ। फिर अल्लाह तबारक व तआला कहेगा, इनल मुतकब्बिरून, कहाँ है तकब्बुर करने वाले जो दुनिया में अकड़ करके चलते थे, कहाँ है जो कमजोरों को कमजोर, जो अपने से कमतर लोग कमजोर समझते थे, कहाँ है वो दुनिया में अपनी तकब्बुरी का घमंड मचाने वाले और मारने वाले, कहाँ है? कोई होगा तो आएगा भी। चुनाचे अल्लाह तबारक व तआला इस दुनिया के निजाम को खत्म करेगा और अल्लाह तबारक व तआला कहेगा, ऐ लोगों, ऐ दुनिया वालों, मैं ही असल इस दुनिया का बादशाह था, मेरे ही हाथ में सब कुछ हुक्मरानी थी, मैंने ही इस दुनिया को बनाया था और एक अच्छे सांचे में ढाला था। आज मैंने इस दुनिया को फना और तहस नहस कर दिया और फिर उसके बाद मैं ही इसको असर नो, मैं आप लोगों को फिर से इसी हालत में बनाने करके तैयार करने वाला हूं। अल्लाह तबारक व तआला के कब्ज़े कुदरत में सब कुछ था। अल्लाह तबारक व तआला ने इसको बनाया, मौत दी, फिर हमको और तुमको फिर इसी हालत में अल्लाह तबारक व तआला जिंदा करने वाला है। चुनाचे अल्लाह तबारक व तआला इस दुनिया को खत्म करने के बाद, इस निजाम को तहस नहस करने के बाद, हमारा कुछ पता नहीं होगा। हमसे पहले वाले भी जमीनों के अंदर मदफून है, कब्रों के अंदर मदफून है, न जाने कहाँ है, उनकी हड्डियां तक भी पता नहीं कहाँ है। कोई तो जमीन की गिजा बन गई, कोई मिट्टी की खुराक बन गई, कोई कहाँ है, कोई हवा का शिकार हो गई, कोई कहाँ है, कोई कहाँ है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला मेरे और आपके और सब लोगों के जिस्म और जुस्से को तैयार करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला 40 दिन के लिए एक बारिश बरसाएगा। वो तेज बारिश नहीं होगी, वो हल्की फुल्की सी बारिश होगी, हल्की फुल्की बारिश होगी। 40 दिन तक अल्लाह तबारक व तआला बारिश बरसाएगा। उसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला मेरे और आपके जिस्म जुस्से को, आपकी हड्डी कहाँ कहाँ गई, हमारी हड्डी कहाँ कहाँ गई, उन सबको, हमारी हड्डियों को हमारी हड्डी हमारे जिस्म से ही जोड़ेगा। मजाल है कि अल्लाह तबारक, मजाल है कि मेरा कोई नाखून का एक छोटा सा सिरा किसी और दूसरे के नाखून में जाकर के फिट हो जाए, नहीं। जो मेरा जिस्म जुस्सा है वो मेरे अंदर पेवस्त होगा, जो और किसी का है वो और किसी के अंदर पेवस्त होगा। चुनाचे अल्लाह तबारक व तआला हमको फिर असर नो, फिर ऐसे ही बनाएगा। चुनाचे अल्लाह तबारक व तआला पुकारेगा तो इंसान कब्रों से निकल कर नंगे बदन और नंगे जिस्म दौड़ेंगे, नंगे बदन और नंगे जिस्म दौड़ेंगे आवाज की तरफ कि कहां से आवाज आ रही है, कब्रों से निकलेंगे। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला सबसे पहले हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कपड़े पहनाएगा। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कपड़े पहनाएगा। उसके बाद तीसरे नंबर पर अल्लाह तबारक व तआला तमाम अंबिया किराम को कपड़े पहनाएगा। और चौथे नंबर पर अल्लाह तबारक व तआला मुअज्जिन को, जो अजान देता है मस्जिदों के अंदर, अल्लाह तबारक व तआला चौथे नंबर पर, जिनको हम किसी चीज का काम का नहीं समझते कि 2 कौड़ी का आदमी है, उसको अल्लाह तबारक व तआला अंबिया किराम के बाद चौथे नंबर पर कपड़े पहनाएगा। उसके बाद नेक लोग होंगे, सुलहा होंगे, मोमिनीन होंगे, मोमिनात होंगे, मुस्लिमीन होंगे, मुस्लिमात होंगे, साबिरीन, साहिबीन, जो भी को अल्लाह तबारक व तआला एक के बाद दीगरे दर्जा बदर्जा अल्लाह तबारक व तआला उनको कपड़े पहनाता चला जाएगा। तो हाज़रीन, मेरी बात का हासिल कलाम और निचोड़ ये हुआ कि हमने अल्लाह तबारक व तआला की किन किन नेमतों से फायदा उठाया और अल्लाह तबारक व तआला की जात को कहीं हम भूल तो नहीं बैठे इन दुनिया के चक्करों में आकर के। अल्लाह तबारक व तआला ने जो हमारे ऊपर इतने इनामात की बारिश बरसाई कि कहीं हम अल्लाह तबारक व तआला की जात को नहीं भूल बैठे कि जिसने हमको ये जिंदगी अता फरमाई, हमको उससे वो जिंदगी जाने वाली भी। रात दिन का हमारा तजुर्बा है, तमाम लोगों का हर चीज पर इख्तिलाफ हुआ,
चुनाचे किसी ने कितने खुदा बतलाए, किसी ने 360 खुदा बतलाए, किसी ने 3 खुदा बतलाए, किसी ने 2 खुदा बतलाए, लेकिन एक चीज पर मेरा और आपका और हर किसी का, किसी ने इससे इख्तिलाफ नहीं किया। हर किसी ने कहा है कि मौत आएगी। मौत से कोई भी आदमी वो नहीं है कि मौत नहीं आएगी, हर किसी का इस बात पर इत्तिफाक है। खुदा तो 2 मान लिए, 3 मान लिए, ज्यादा मान लिए, लेकिन मौत हर किसी को आनी है और हर किसी का इस बात पर इत्तिफाक है कि हाँ मौत बरहक है, मौत आने वाली है। अब हमको और आपको देखना है कि क्या हमने मरने से पहले क्या तैयारी की है। हमने कहीं खुदाए पाक को, जो अल्लाह तबारक व तआला है, जिसने हमको इस जिंदगी दी, हमने उसको नाराज तो नहीं किया। हमने उसकी इबादतें की तो किस तरीके से की, किस हद तक की, आया उस इबादत का क्या हक था, हम उस इबादत को सही ढंग से अंजाम दे रहे हैं क्या नहीं दे रहे। तो अल्लाह तबारक व तआला से डरें और अल्लाह तबारक व तआला से डर